GSC was there. Just I am sharing my screen. Tell me it is visible or not. Does it visible? Yes, sir. Okay. How do gas liquid and gas solid chromatography differ? एक क्वेश्चन 5 मार्क के लिए एग्जाम में आता है. पहला तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट है कि गैस लिक्विड गैस सॉलिड में स्टेशनरी फेज कौन सा है, राइट? तो स्टेशनरी फेज जीएससी में जो है दैट इज एन सॉलिड, और जीएलसी में जो है दैट इज एन लिक्विड. दैट यू हैव टू रिमेंबर. Okay, then the second point of the difference is the how that chromatography works, or the principle of that chromatography, how the separation is possible. Okay, second most important factor for the differentiation is how the separation occurs. Here in the GSC, the based on the adsorption, okay, adsorption coefficient, the partition will be based on the adsorption, and here partition or say separation will based on the solubility in the liquid. Now we will talk about the distribution coefficient. In the GSC it will be the much longer, and in case of the GLC it will be the relatively small. For in terms of the temperature, no upper limit for the temperature for the GSC, whereas upper limit decided by the boiling point of the liquid phase. It should be 100 degrees centigrade below the boiling point. Then concentration, small amount of the sample is used, and concentration in the GLC only in case of the capillary column small amounts are used. Reaction, solid is good adsorbent which can trigger chemical reaction in the sample, whereas in the GLC reactions are not possible. In the GSC, reproducibility is very poor, whereas in GLC, reproducibility is the extremely good, means you will get the result same for the same sample. Okay, versatility, let's versatile, and GLC is the much more versatile. मतलब use में as per as the use is concerned कि कौन सा versatile है, कौन सा ज़्यादा use किया जाता है, तो GLC ज़्यादा use किया जाता है, GSC कम use किया जाता है. This is the basic difference. 5 marks question comes in the exam. Differentiate between the GLC and GSC. Okay. Now we will move towards the next lesson, or say next part of the chromatography is the ion exchange chromatography. Just I am playing this animated video. Ion exchange chromatography is a chromatography process that allows the separation of ions and polar molecules based on their charge. As well as other forms of chromatography, in ion chromatography, there is a mobile phase, which generally consists of buffer solution. And there is a stationary phase which consists of a matrix that contains charged ionizable functional groups. This type of See the video very well. Animated video is there. This experiment you have to perform in the lab in the analytical chemistry. आयन एक्सचेंज का प्रैक्टिकल है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल है, और आपको लैब में करना है. ओके, प्लीज सी दिस सेम अरेंजमेंट वी आर गोइंग टू यूज इन द लैब. ओके, chromatography is subdivided into anion exchange chromatography and cation exchange chromatography. Anion exchange chromatography. Negatively charged molecules are attracted to a positively charged solid support, which is usually beads that provide a positively charged surface, such as resin quaternary ammonium. In cation exchange chromatography, positively charged molecules are attracted to negatively charged solid support, which is commonly beads that provide negatively charged functional groups, such as resin. The process of this chromatography can be represented in 4 steps: conditioning or equilibration of the stationary phase, sample loading, washing, and elution of the retained molecules. The first step is the equilibration of the stationary phase to the desired start conditions. The pH and ionic strength of the sample buffer are selected to ensure that, when sample when the column is equilibrated. The second step is sample application. Depending on the pH of their environment,
proteins may carry a net positive charge, a net negative charge, or no charge. The charge can be determined by comparing the pHi of each protein with the pH of the buffer. Proteins are large biomolecules. Amino acids are organic compounds that contain amine and carboxyl functional groups, along with a side chain specific to each amino acid. Depending on the pH of their environment, the amino group can be protonated and become positively charged. The carboxyl negatively charged. And the side chain of some amino acids can become positively or negatively charged due to the gain or loss of protons. So, the net charge on the molecule can be positive, neutral, or negative. The isoelectric point or pHi is the pH at which a protein carries neutral charge. At a pH below their isoelectric point, proteins carry a net positive charge. And at a pH above their isoelectric point, they carry a net negative charge. In this example, the pH of the buffer is equal 5, consequently, protein A has a net negative charge. And both protein B and C carry a net positive charge. In addition, protein C is more positively charged since its pHi is higher than the pHi of protein B. If we apply cation exchange chromatography, protein that has a net positive charge, it will bind to the negative charge beads of the stationary phase. On the other hand, uncharged proteins, or those with a net negative charge, would not bind. They pass through the column at the same speed as the flow of buffer. When all the sample has been loaded, the next step is column washing. The column is washed with start buffer. To ensure that all non-binding proteins have passed through the column. When all the sample has been loaded and the column washed, conditions are altered in order to elute the bound proteins. Most frequently, proteins are eluted by increasing the ionic strength of the buffer, or, occasionally, by changing the pH. As ionic strength increases, the salt ions compete with the bound components for charges on the surface of the medium, and one or more of the bound species begin to elute and move down the column. The proteins with the lowest net charge at the selected pH will be the first ones eluted from the column as ionic strength increases. Similarly, the proteins with the highest charge will be most strongly retained and will be eluted last. Protein B has the lowest net positive charge, so it can be eluted first. Then, protein C with the highest net positive charge, it can be eluted next by increasing the salt concentration. Also, varying the pH of the buffer can be used to affect the separation and to elute the retained proteins. As we seen, the pHi of the protein B is equal 7, and the pHi of protein C is equal 9. So if we add a buffer with pH above the isoelectric point of protein B and below the isoelectric point of protein C, the protein B will become negatively charged and can then be eluted. The protein C is still charged positively, consequently, still retained. Next, protein C can be eluted if we apply a buffer with pH above its isoelectric point. So, it becomes negatively charged, and it will pass through the column. One of the primary advantages for the use of ion chromatography is only one interaction involved during the separation. Another advantage of ion exchange is the predictability of elution patterns. By controlling changes in ionic strength or in pH of the buffer, using different forms of gradient, proteins are eluted differently in a purified concentrated form. Ion exchange chromatography is a chromatography. How was the video?
कुछ समझा आयन एक्सचेंज के बारे में? उमर है वहां पे? Hi everyone, I am Dr. Sandeep Sharma, Super. हाँ, Subscribe now and press the bell icon. Never miss. स्क्रीन विजिबल है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह का होता है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक होता है तो उस जगह पर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज की जाती है। और क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें से एक टाइप है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो प्यूरिफिकेशन होता है कंपोनेंट्स का वो आयन के बेसिस पर होता है, तो इस वजह से इस क्रोमेटोग्राफी को आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड या कोई दूसरा चार्ज मॉलिक्यूल आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू प्यूरिफाई किया जा सकता है। अब देखते हैं कि इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह का होता है और मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज किसको कहते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन को अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक रिजर्वॉयर रहता है, बॉटल रहती है, वो अटैच रहती है कॉलम के साथ। कॉलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉलम अटैच डिवाइस के साथ जिसको डिटेक्टर कहते हैं, और डिटेक्टर अटैच रहता है कंप्यूटर के साथ जिस पर फाइनल ग्राफ फॉर्म होके आता है। इस रिजर्वॉयर में जो बॉटल रहती है स्टार्टिंग में, उसमें मोबाइल फेज फील्ड रहता है। मोबाइल फेज इसमें होता है बफर सॉल्यूशन। मोबाइल फेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से ही इसके साथ मिक्स करके बफर सॉल्यूशन के साथ सैंपल को मिक्स करके कॉलम के ऊपर रन किया जाता है। तो क्योंकि ये सैंपल के मूवमेंट में हेल्प करता है कॉलम के ऊपर, इसलिए इसको मोबाइल फेज कहते हैं। और कॉलम के अंदर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये कॉलम है। कॉलम के अंदर एक स्टेशनरी फेज रहता है। स्टेशनरी फेज मतलब सॉलिड एड्सॉर्बेंट मटेरियल। ये जो इस कॉलम के अंदर फील्ड है, ये सॉलिड एड्सॉर्बेंट मटेरियल होता है, इसको स्टेशनरी फेज कहते हैं। और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के केस में जो स्टेशनरी फेज है ये रेजिन का बना होता है। रेजिन स्मॉल स्मॉल बीड्स रहती हैं जो कि चार्ज कैरी करती हैं। तो रेजिन के बेसिस पर ही आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी दो तरीके की हो जाती है, कैटायन एक्सचेंजर या फिर एनायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर अगर ये जो बीड है ये नेगेटिव चार्ज कैरी करती है तो उसको कैटायन एक्सचेंजर बोलते हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है तो उसको एनायन एक्सचेंजर बोलते हैं। तो रेजिन अगर नेगेटिव चार्ज कैरी करती है तो कैटायन एक्सचेंजर, रेजिन अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है तो एनायन एक्सचेंजर। लेकिन रेजिन के साथ यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है जो कि ऑपोजिट इन नेचर होता है, ऑपोजिट चार्ज का होता है। सपोज यहाँ पर जो मैंने रेजिन ड्रॉ की हुई है ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, मीन्स ये अगर रेजिन एनायन एक्सचेंजर है, इस केस में इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है जो कि नेगेटिव इन चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो रेजिन होगी वो थोड़ा मॉडिफाइड रहती है, मींस रेजिन की बीड पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन रेजिन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसी तरह से कैटायन एक्सचेंजर में रेजिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है लेकिन रेजिन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, रेजिन नेगेटिवली चार्ज है लेकिन रेजिन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो पॉजिटिव इन चार्ज होता है। रेजिन डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट रेजिन यूज किए जाते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। यहाँ पर रेजिन को कैटेगराइज भी किया गया है वीक एक्सचेंजर और स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर्स के लिए। वीक एक्सचेंजर और स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर मीनिंग कि ये जो रेजिन होती है ये कितना पीएच के वेरिएशन को हैंडल कर सकती है। देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, मीन्स प्यूरिफिकेशन किस तरह से होता है। सपोज ये कोई सैंपल है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इस सैंपल को मिक्स करते हैं एक बफर सॉल्यूशन के साथ जिसका एक स्पेसिफिक पीएच रहता है। उसको मिक्स करने के बाद यहाँ फिल करके जब कॉलम के ऊपर रन करते हैं, कॉलम के ऊपर रन करने के बाद क्या होता है, अगर सपोज सैंपल जो है, यहाँ एज ए एग्जाम्पल प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन सपोज नेगेटिव चार्ज कैरी करती है। नेगेटिव चार्ज अगर प्रोटीन कैरी कर रही है और प्रोटीन को लोड किया गया कॉलम पर, कॉलम उस केस में हम लेते हैं एनायन एक्सचेंजर। कॉलम के अंदर एनायन एक्सचेंजर रेजिन फिल्ड है और प्रोटीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, ये जो एनायन एक्सचेंजर रेजिन का नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप है उसको रिप्लेस करके ये प्रोटीन इसके साथ कॉम्पीट करेगी फंक्शनल ग्रुप के साथ और इसको रिप्लेस करके यहाँ पर खुद से बाइंड हो जाएगी। तो जो प्रोटीन का नेगेटिव चार्ज प्रोटीन यहाँ
फंक्शनल ग्रुप को नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप को रेजिन से रिप्लेस किया और खुद से बाइंड हो गई रेजिन के साथ, रेजिन की बीट के साथ। रेजिन की बीट lecture पर चल रहा है पॉजिटिव ना? चार्ज और प्रोटीन ओ, नेगेटिव ओके, चार्ज कैरी करी तो अपोजिट चार्ज बसा? की वजह से अरे बसा हो। बाइंड हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हुआ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन से। नेगेटिव चार्ज मींस एनायन, तो एनायंस का एक्सचेंज हुआ, इस वजह से इसको एनायन एक्सचेंजर कहते हैं। और अगर सपोज सैंपल में जो प्रोटीन है वो पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में यूज की जाएगी कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कैटायन एक्सचेंज में जो रेजिन की बीड का साथ चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उसके साथ फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज अटैच रहता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज सैंपल को कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पर लोड किया जाएगा तो वहां पर क्या होता है, तो सैंपल का पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन जो रेजिन की पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप है उसको रिप्लेस करके वहां खुद से बाइंड हो जाती है। तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हुआ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन से, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस किया, इसलिए इस क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो प्रोटीन पर चार्ज है ये किस तरह से डिफाइंड रहता है, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड की मिलकर बनी होती है, कुछ अमाइनो एसिड्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, कुछ अमाइनो एसिड नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो ओवरऑल प्रोटीन किस तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है वो डिफाइन करता है कि ओवरऑल प्रोटीन कौन सा चार्ज कैरी करती है। उस बेसिस पर ये चूज किया जाता है कि प्यूरिफिकेशन के लिए कैटायन एक्सचेंजर यूज किया जाएगा या फिर एनायन एक्सचेंजर यूज किया जाएगा। अब लैब में क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके वो देखते हैं। लेबोरेटरीज में 4 स्टेप्स होते हैं, इक्विलिब्रेशन करना कॉलम का, देन सैंपल को कॉलम पर लोड करना, देन वॉश करना कॉलम को, एंड देन जो सैंपल लोड किया है उसको इल्यूट करना। तो जब हम सबसे पहले इक्विलिब्रेशन करते हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रेशन बफर लिया जाता है, उसको कॉलम के ऊपर रन करते हैं, रनिंग के लिए फ्लो रेट सेट रहता है, उसी फ्लो रेट के साथ वो बफर रन होगा। देन कॉलम से बाहर आएगा, डिटेक्टर सिर्फ बफर को डिटेक्ट करता है और सिस्टम पर एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है। तो ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं बेस लाइन। स्ट्रेट लाइन इसलिए जरूरी रहती है यहाँ पर क्योंकि ये बताती है कि कॉलम प्रॉपरली पैक्ड है, क्योंकि कॉलम की पैकिंग की जाती है प्यूरिफिकेशन से पहले। प्यूरिफिकेशन से पहले कॉलम जो रेजिन होती है वो कॉलम में फिल करके पैक की जाती है प्रॉपरली। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती है तो मींस कॉलम प्रॉपरली पैक्ड है, उस पर प्यूरिफिकेशन, उस पर सैंपल को लोड किया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप हुआ इक्विलिब्रेशन। दूसरा स्टेप होता है लोडिंग। लोडिंग में क्या करते हैं, जिस भी सैंपल को प्यूरिफाई करना होता है उसको एक बफर के साथ मिक्स करते हैं जिसका पीएच स्पेसिफिक पीएच रहता है, उस बफर के साथ मिक्स करके कॉलम पर लोड किया जाता है। जब कॉलम पर लोड करते हैं तो सिस्टम का फ्लो रेट बहुत कम रखते हैं ताकि वो स्लोली यहाँ कॉलम से मूव करे और सैंपल को उतना टाइम मिल सके कि वो रेजिन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको रिप्लेस करके वहां खुद से बाइंड हो सके। तो लोडिंग के टाइम पर वो क्या करता है, सैंपल फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके रेजिन की बीड के साथ खुद से बाइंड हो जाता है, तो सैंपल कॉलम पर लोड हो गया। इसको बोल सकते हैं कि सैंपल लोडिंग हो गया कॉलम पर। देन होता है वॉशिंग, क्योंकि जब सैंपल लोड किया तो सैंपल में हर तरह के मॉलिक्यूल्स थे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो कॉलम में अभी फ्रीली अवेलेबल होंगे जो बाइंड नहीं होते हैं रेजिन के साथ, तो वॉशिंग की जाती है एक बफर सॉल्यूशन के साथ, सिर्फ बफर सॉल्यूशन रन करते हैं, तो जिससे जो वो अनवांटेड चीजें थी जो कॉलम के अंदर हैं जो रेजिन से बाइंड नहीं है वो सब वॉश आउट हो जाती हैं और सिस्टम पर कुछ इस तरह का पीक मिल सकता है। ये पीक उन मॉलिक्यूल्स का होता है जो कॉलम पर बाउंड नहीं थे। ये वॉशिंग के स्टेप में ये इस तरह की पीक आती है। थर्ड स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप होता है इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब जो रेजिन, जो सैंपल रेजिन के साथ यहाँ बाइंड हुआ था उसको इल्यूट करना, उसको कॉलम से बाहर निकालना, क्योंकि अल्टीमेटली इस सैंपल को हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं। तो फिर कॉलम को, जब कॉलम पर एक इल्यूशन बफर यूज किया जाएगा, इल्यूशन बफर इस जो प्रोटीन जो बाइंड है रेजिन के साथ उसका बॉन्ड को ब्रेक करेगा और प्रोटीन को वापस से बाहर रिलीज कर देगा। तो कॉलम से बाहर रिलीज कर देता है, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और जो नेक्स्ट पीक बन के आएगी, मींस ये जो ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है क्योंकि सिर्फ यहाँ बफर चेंज करते रहते हैं, ग्राफ पूरा कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहता है। ये इक्विलिब्रेशन हुआ यहाँ पर वॉशिंग का जो पीक है, और ये जो सेकेंड पीक आता है ये इल्यूशन का पीक है। जो वांटेड, जो रेलिवेंट प्रोटीन होती है उसका पीक इल्यूशन करने पर पीक जो मिलती है वो उस वांटेड रेलिवेंट प्रोटीन की पीक होती है। तो इल्यूशन भी यहाँ दो तरीके से होता है, लेकिन यहाँ देख लेते हैं कि जो बफर की पीएच की हम बात कर रहे हैं वो पीएच कैसे चूज की जाती है कि किस पीएच का बफर लेना है।
तो उस केस में क्योंकि हम यहाँ एज एग्जांपल प्रोटीन लेके चल रहे हैं, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड की बनी होती है। अमाइनो एसिड की एक प्रॉपर्टी रहती है, अमाइनो एसिड ज्विटर आयन होते हैं। ज्विटर आयन मतलब अमाइनो एसिड पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज कैरी करते हैं। अगर अमाइनो एसिड को लो पीएच सॉल्यूशन में रखा जाए तो अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है। और अगर अमाइनो एसिड को हाई पीएच सॉल्यूशन में रखा जाए तो अमाइनो एसिड नेगेटिव चार्ज कैरी कर सकता है, क्योंकि वहां पर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है। सेम वे अमाइनो एसिड क्योंकि ज्विटर आयन होते हैं, तो प्रोटीन के केस में यहाँ पर कह सकते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट PI, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर प्रोटीन कोई चार्ज कैरी नहीं करती, न्यूट्रल रहती है। अगर उस तरह की प्रोटीन को लो पीएच सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, और हाई पीएच में रखा जाएगा तो OH आयन ज्यादा होने की वजह से प्रोटीन नेगेटिव चार्ज कैरी करती है। सपोज तो PI किस तरह से पता चलता है? PI प्रोटीन का ऑनलाइन कुछ टूल्स हैं, वहां से हम फाइंड कर सकते हैं कि प्रोटीन जो हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं उसका क्या PI है। जैसे PI कैलकुलेटर एक टूल है, उसकी हेल्प से PI पता कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर PI सपोज प्रोटीन का 3 है और हमने चूज किया एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी, एनायन एक्सचेंजर में रेजिन पर जो साइड चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, और प्रोटीन मींस नेगेटिव चार्ज कैरी करनी चाहिए एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी के केस में। तो प्रोटीन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी अगर हम पीएच PI से ज्यादा रखेंगे। सपोज बफर का pH 4 रखेंगे, तो बफर का pH अगर 4 रखेंगे तो प्रोटीन नेगेटिव चार्ज जो इन्वायरमेंट में रहेगी नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी। तो जो लोडिंग बफर की pH होती है वो PI के बेसिस पर सेट की जाती है। अगर PI 3 है तो pH 4 रखेंगे तो प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होगी और प्रोटीन को सैंपल पर लोड कर सकते हैं, कॉलम पर लोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? इल्यूशन। इल्यूशन दो तरीके से होता है, या तो सॉल्ट के बेसिस पर या फिर पीएच के। सॉल्ट मींस यहाँ पर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे पहले कम सॉल्ट का सॉल्यूशन को रन करेंगे कॉलम के ऊपर, तो वो जो प्रोटीन जो सिंगल बॉन्ड के साथ रेजिन के साथ अटैच थी वो कॉलम से वो बॉन्ड ब्रेक करता है। सॉल्ट ये जो दोनों के बीच का बॉन्ड है रेजिन और प्रोटीन, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और वो प्रोटीन जो लूजली अटैच थी रेजिन के साथ वो बाहर आ जाती है लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे। और जैसे जैसे धीरे धीरे क्योंकि सॉल्ट ग्रेडियंट, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं सॉल्यूशन में, तो जो प्रोटीन जो ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ रेजिन के साथ अटैच थी उस तरह के प्रोटीन बाहर आ जाते हैं। डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और सिस्टम पर पीक बन के आएगी। अगर 2 पीक है तो फर्स्ट पीक प्रोबेबली उन प्रोटीन्स की होगी जो लूजली अटैच थी रेजिन के साथ, और लास्ट पीक होगी जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म किए हुए थे रेजिन के साथ। और पीएच, अगर पीएच के बेसिस पर इल्यूशन करना है तो पीएच वो यूज करते हैं जो प्रोटीन का पीआई है। अगर सपोज प्रोटीन का पीआई यहाँ 3 है तो बफर का पीएच भी 3 लेंगे, क्योंकि 3 पीएच लेने पर प्रोटीन न्यूट्रल हो जाएगी, प्रोटीन कोई चार्ज कैरी नहीं करेगी। यहाँ 3 पीएच का बफर लेंगे, रन करेंगे कॉलम पर, तो जब वो रन होगा तो प्रोटीन न्यूट्रल हो जाएगी, कोई चार्ज कैरी नहीं करेगी। तो ये जो बॉन्ड है रेजिन और प्रोटीन के बीच में ये ब्रेक हो जाएगा कोई चार्ज ना होने की वजह से, और प्रोटीन कॉलम से इल्यूट हो जाएगी और डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, ग्राफ बन के आएगा। तो मींस ग्राफ अगर सॉल्ट के बेसिस पर है तो पीक मिलेंगी, या फिर अगर पीएच के बेसिस पर इल्यूशन किया तब भी पीक मिलेंगी। उसके बाद ये जो पीक होती है, जो ग्राफ होता है, इसकी एक्स एक्सिस पर, ग्राफ के एक्स एक्सिस पर या तो कुछ इमेजेस में टाइम दिखेगा, क्योंकि वो टाइम रहता है, वो टाइम होता है कि कितने टाइम तक कंपोनेंट स्टे किया कॉलम के अंदर, रिटेंशन टाइम बोलते हैं। कुछ इमेजेस में ये वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मतलब कॉलम वॉल्यूम, कि कितना बफर, कितना टोटल वॉल्यूम रन किया गया कॉलम के ऊपर बफर का। तो टी जो एक्स एक्सिस पर या तो टी देखने को मिल सकता है या फिर वी वॉल्यूम कितना रन हुआ बफर का। लेकिन वाई एक्सिस पर होता है एब्जॉर्बेंस, कि कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो इल्यूट बाहर आया कॉलम से वो डिटेक्टर को हिट कर रहा है। तो वाई एक्सिस पर एब्जॉर्बेंस होती है। ग्राफ कुछ इस तरह का होता है कि फर्स्ट जो है, क्योंकि इक्विलिब्रिएशन फर्स्ट स्टेप था तो स्ट्रेट लाइन रहेगी। देन लोडिंग के टाइम पर जो लोडिंग या वॉशिंग के टाइम पर जो प्रोटीन बाउंड नहीं थे रेजिन के साथ, उनको जब वॉश किया तो वो भी कुछ पीक देंगे सिस्टम पर, एंड देन इल्यूशन के पीक होंगे। और इस पीक का एरिया कैलकुलेट करके कि कितना कॉन्सेंट्रेशन सैंपल का था मिक्सचर में, वो फाइंड किया जा सकता है इस पीक के एरिया से। आई होप यहाँ मैं आपको क्लियर रही होंगी। ओके, यू कैन लेट नाउ, समझा होगा मेरे ख्याल से अच्छे से। हैव गॉट इट तंजील? Yes, sir.
Okay, okay.